بلتستان کے ہیلتھ اور ایجوکیشن منسٹر اور آزاد کشمیر کے ہیلتھ اور ایجوکیشن منسٹر بھی شامل ہوئے. یعنی کہ جتنے بھی انتظامی عہدے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے پاکستان میں، سب نے مشاورت کی، اور مشاورت میں دو چیزوں پہ غور کیا. ایک چیز اس پہ غور کیا وہ یہ تھی کہ جو تعلیمی ادارے اپریل 11 تک بند ہیں، کیا وہ کھولے جائیں گے یا مزید بند رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ جو امتحانات ہونے ہیں ان کا کیا شیڈول ہوگا اور وہ کیسے ہوں گے. اور امتحانات بھی دو قسم کے ہیں. ایک امتحانات وہ ہیں جو کہ 9th 10th 11th 12th کے ہیں، اور دوسرے ایگزام وہ ہیں جو کہ اے لیول، او لیول اور اے ایس لیول کے جو امتحان ہونے ہیں. تو ان دونوں چیزوں پہ بڑی تفصیل ڈسکشن ہوئی، اور ڈسکشن کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ جو ضلع متاثر ہیں، یعنی کہ ہر ضلع پاکستان میں متاثر نہیں ہے اور ہر علاقہ متاثر نہیں ہے، لیکن جو ضلع متاثر ہیں وہاں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ نہیں ہوں گی، اور 28 اپریل تک یہ کلاسیں بند کر دی گئی ہیں. کلاس 1 to 8 کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ نہیں ہوگی ان جگہ پہ جہاں پہ افیکٹڈ ہے. مثلا ایجوکیشن منسٹر پنجاب نے بتایا کہ ان کے 13 اضلاع ایسے ہیں جو افیکٹڈ ہیں، اور اس لیے ان 13 اضلاع میں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ 28 اپریل تک فزیکل پریزنس جو ہے ان کی نہیں ہوگی. اسی طرح سندھ میں بھی آلریڈی انہوں نے اعلان کر دیا ہے 1 to 8 کا، اور یہ فیصلہ اور خیبر پختونخوا میں بھی. اور یہ فیصلہ جو ہے جو فیصلہ ہے یہ صوبے فیصلہ کریں گے کہ کہاں افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہے اور کہاں پہ یہ ہوگا. باقی 28 اپریل کو اس چیز پہ دوبارہ مشاورت ہوگی کہ ان کو عید تک بند رکھا جائے یا عید سے پہلے کچھ کلاسز اسٹیگرڈ طریقے سے 1 to 8 کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو کلاسیں 9 سے 12 تک کی ہیں اور جو 9 10 11 12 ہیں جن کا آگے امتحان ہونا ہے، ان کو اسٹرکٹ SOPs کے ساتھ 19 اپریل سے ہر جگہ آنے کی اجازت دی جائے. یعنی کہ جو افیکٹڈ ڈسٹرکٹس بھی ہیں وہاں پر بھی ایک اسٹیگرڈ طریقے سے 9 10 11 12 جو ہے وہ آئیں گے، تاکہ وہ اپنا لیسنز جو ہے یا اپنا جو کورس ہے اس کو مکمل کر سکیں، تاکہ امتحان کے لیے ان کی تیاری جو ہے وہ ہو سکے. اور جہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی بند رہیں گی اور وہ آن لائن چلے جائیں گی، اور جہاں اثر نہیں ہے وہاں پہ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس جہاں نہیں ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز اپنا معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے. تو یہ تو ہے بنیادی طور پہ جو بندش اور کھولنے کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دوں کہ 1 to 8 افیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں بند 28 اپریل تک. 28 اپریل کو جائزہ لیا جائے گا کہ وہ عید تک مزید بند رکھے جائیں یا نہیں، اور جو 9 to 12 ہے وہ 19 اپریل سے ہر جگہ وہ اسکول میں آنا شروع ہو جائیں گے، تاکہ وہ آخری تیاری کر سکیں اپنے، اور ٹیچرز ان کو ہیلپ کر سکیں اپنے امتحان کے لیے. اب رہ گیا جی معاملہ امتحانات کا. جو 9 10 11 12 کی کلاسز ہیں وہ تقریباً 40 لاکھ بچہ جو ہے وہ ان کلاسز کا امتحان دیتا ہے، اور یہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. تقریباً 30 بورڈ جو ہیں جن کے امتحانات ہوتے ہیں 9 10 11 12 کے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ 9 10 11 12 کے امتحانات ہوں گے، اور جو امتحانات ہیں وہ ان کو صرف کیونکہ وہ ہمارے مقامی امتحانات ہیں ان کو
मई के तीसरे हफ्ते में ले जाया जाएगा, यानी कि उससे पहले शुरू नहीं होंगे। और जो डेट शीट पंजाब ने मई 4 की जो अनाउंस की है उसको आगे कर दिया जाएगा ताकि बीमारी की हालात भी बेहतर हो जाए और उनको तैयारी का भी मौका मिल जाए। तो ये 40 लाख बच्चा जो है ऑल ओवर पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ सूबों ने, मुख्तलिफ बोर्ड्स ने अपने अपने टाइम टेबल दिए हैं, लेकिन भाई 24 से पहले नहीं होगा, कुछ जून में होंगे, कुछ पेपर्स जुलाई में भी होंगे। और इस सिलसिले में हमने यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन है वो उसको भी थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, ताकि अगर इम्तिहानात लेट होते हैं तो उसका रिजल्ट भी लेट आएगा और यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन है वो भी जो है वो थोड़ी लेट हो सकती है। तो इसलिए ये बोर्ड्स और हायर एजुकेशन कमीशन आपस में कोऑर्डिनेट करके यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम जो है उनको भी आगे कर दें। अब रह गया मामला ए लेवल, ओ लेवल, जो कि बैरूनी बोर्ड के इम्तिहानात हैं जिनको हम आगे नहीं कर सकते, लेकिन ये बच्चे बहुत थोड़े हैं। सारे पाकिस्तान में जो इस वक्त बच्चे जहाँ वो 40 लाख हैं, ये तकरीबन 85,000 बच्चे हैं जो कि सारे पाकिस्तान में AS और O लेवल का इम्तिहान जो है वो दे रहे हैं। तो मुतफ़िका तौर पे सारे वज़रान हैं, चाहे वो हेल्थ के वज़ीर हों, चाहे वो एजुकेशन के मिनिस्टर हों, उन सब ने रिकमेंड किया कि ये इम्तिहानात जारी रहने चाहिए। और क्योंकि ये बच्चों की तादाद भी थोड़ी है और कैमब्रिज के साथ जो डिस्कशन हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो मुकम्मल SOPs पे 6 मीटर का फासला रख के डेस्क लगाएंगे और बल्कि बाहर भी जमघटा नहीं होने देंगे और इंश्योर करेंगे। और क्योंकि ये तादाद कम है, मैं जैसे मिसाल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जो डेट शीट है उसके मुताबिक, एक सेकेंड जी, उसके मुताबिक जो 26 तारीख है उसको जो इम्तिहानात हैं वो तकरीबन 4000 बच्चे जो हैं वो 26 तारीख को इम्तिहान लेंगे। और इसी तरह किसी दिन 2000 है, किसी दिन 5000 है, एक दो दिन ऐसे हैं जबकि 10 या 12,000 हैं। आप उसको कंपेयर करें जो इम्तिहानात हैं उसके 9, 10, 11, 12 के, जहाँ पे 40 लाख बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, तो ये एक बहुत छोटा तादाद है। और उसमें हमारे साथ इन्होंने नेशनल अपना कैम्ब्रिज ने ये वादा किया है कि वो सारे SOPs के मुताबिक जो है वो होंगे। इत्लाम ये मैं अर्ज़ कर दूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जिस इस खित्ते में इम्तिहान नहीं हो रहे, ये दुरुस्त नहीं है। सिवाय बांग्लादेश के हिंदुस्तान में भी इम्तिहान हो रहे हैं, श्रीलंका में भी इम्तिहान हो रहे हैं A और O लेवल के, और नेपाल में भी इम्तिहान हो रहे हैं और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ के इम्तिहान हो रहे हैं। बल्कि कैम्ब्रिज से जो हमने डेटा लिया है उसके मुताबिक सारी दुनिया में 80% ममालिक ऐसे हैं जहाँ इम्तिहानात हो रहे हैं। तो ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि जो बच्चे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं वो यकसू होकर तैयारी करें कि ये फैसला किया गया है कि ये इम्तिहानात A लेवल के और O लेवल के होंगे और वो डेट शीट के मुताबिक होंगे, SOPs के साथ होंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये जो है ये एक अटल और मुतफ़िका फैसला है सारे पाकिस्तान के एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर्स का। तो इसलिए बच्चे जो है वो तैयारी करें और इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो कि कोई कह रहा है कि होंगे या नहीं होंगे। ये इम्तिहानात होंगे, SOPs के मुताबिक होंगे और इसके लिए हम मॉनिटर करेंगे, हर स्कूल को देखेंगे, जाके इंश्योर करेंगे कि SOPs हों। ब्रिटिश काउंसिल इसको सारे इंतजाम मुकम्मल करेगा और इंशाअल्लाह ताला ये इम्तिहानात जो है वक्त पे हो जाएंगे। मैं आपको सबको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे मद्देनज़र सिर्फ बच्चों की मुस्तकबिल, बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों की बेहतरी ये हमारे जहन में है। सारे जो एजुकेशन मिनिस्टर्स ने और हेल्थ मिनिस्टर ने जो अगर यकसू होकर ये कहा है तो ये इसलिए कहा है कि वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इम्तिहान हो।
पिछले साल 9, 10, 11, 12 के जो क्लासेस के बच्चे थे उनको हमने 1 साल पहले के इम्तिहान की बुनियाद पर पास किया था। अब तो 1 साल पहले की बुनियाद भी नहीं है, तो इसलिए इम्तिहानात देने ज़रूरी है और ये इम्तिहानात होंगे। उसके अलावा जो स्कूल्स का छोटे बच्चों के लिए क्लास 1 to 8 का है, ये हम रिव्यू करेंगे 28 तारीख को, और इसको हमारी कोशिश तो यही है कि बच्चों के स्कूल जो है वो जितनी जल्दी हो सकता है खोल दें, क्योंकि बड़ा शदीद नुकसान हुआ है उनकी तालीम का। तो ये जो फैसले हैं आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में, जो कि सारे पाकिस्तान के वज़राए तालीम और सेहत ने लिए हैं, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सही फैसले हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।